Alright, so let's continue with more questions on electrostatics. The nucleus of helium atom contains two protons that are separated by a distance of 3 into 10 power minus 15 meter. By the way, ये 10 power minus 15 को Fermi meter भी बोलते हैं, femtometer भी बोलते हैं. Normally it's femto, okay, but some books will say Fermi meter. The magnitude of electrostatic force that each proton exerts on the other is. So electrostatic force of repulsion निकालना है, by the way. So this is, of course, you know, 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. ये 9 into 10 power 9 है. q1 into q2 प्रोटॉन पे चार्ज होता है e and e square अपॉन r is 3 into 10 power minus 15 square. So 9 into 10 power 9 e is 1.6 into 10 power minus 19 square upon 9 into 10 power minus 30. कैंसिल एंड कैंसिल. तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज 1.6 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. तो आपके पास दो प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स पूछा था और डिस्टेंस दिया था आपको, तो यू कैन जस्ट सॉल्व लाइक दिस. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 38 और ये 10 पावर माइनस 30 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 30 हो जाएगा, 10 पावर प्लस 30. तो ऑफ कोर्स 1.6 का स्क्वायर 2.56, तो ये 2.56 okay. This is 10 power 39 plus or minus 38, so 2.56 into 10 मतलब 25.6 न्यूटन. That is what I told you कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. 16 स्क्वायर दिखता है तो 256 आएगा. Next question. 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. Each of them is given additional charge. इस type के questions we have already solved a lot, so this should go into assignment because हमने 4 से 5 बार ऐसा question solve किया है, so this should go into assignment now. Next question. 2 point charges of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are 10 centimeter apart. Where will be the electric field strength 0 on the line joining the charges 20 microcoulomb? ऐसा है, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है. One is basically 20, other is 80. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा? on this line joining the two charges measured from 20 microcoulomb. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. This is let us say Q1 which is 20 microcoulomb. This is let us say Q2 which is 80 microcoulomb. आपको ऐसा पूछा है कि इस लाइन पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा measured from 20 microcoulomb. तो ये मैं मान लेता हूँ x, तो ये आ गया 10 minus x, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में कितना था? 10 सेंटीमीटर, तो 10 minus x, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to A should be equal to electric field due to B. उस B point पे electric field due to charge at A should be electric field at the point P due to charge at B. तभी कैंसिल होगा. और by the way दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे, तो A की वजह से फील्ड जो होगा अवे होगा, मतलब टुवर्ड्स P होगा, और B का भी कहाँ होगा? towards P. So these are two opposite vectors, anti-parallel vectors. तो cancellation हो सकता है. So this is what you need to know. Simple. So at point P, electric field due to A and due to B should be equal in magnitude, opposite in direction. This is nothing but 1/4 pi epsilon 0. इसको मैं K बोलूँगा. Now onwards, this will always be called as K. इसको हमेशा K बोलेंगे. Right? Charge at A, that is Q1 by distance square. X square K. Then you will have Q2 by distance का square. तो Q2 by distance कितना है यहाँ पे? 10 minus x. 10 minus x का square, right? तो K तो कैंसिल हो जाएगा.
Q1 कितना 20 माइक्रोकूलम। मैं माइक्रो लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि 20 इंटू 10⁻⁻6 और राइट हैंड साइड पे भी 80 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 वैसे भी कैंसिल होगा, तो 20/x² इक्वल टू यहाँ पे 80/10 - x² आएगा, तो 1 and 4 and then you have to take square root. If you take square root, so 1/x, 4 का रूट इज 2, 2/10 - x, तो सॉल्व करो इसको, दिस इज 10 - x इक्वल टू 2x, 10 - x इक्वल टू 2x, 10 yes 10 - x इक्वल टू 2x, तो 10 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 10/3, x इक्वल टू 10/3, 10/3 is 3.33, right, measured in centimeter, correct, right, ऐसा आंसर है क्या? No, तो what is wrong? Something is wrong. What is wrong? बताओ। 2020, this is right, electric field due to Q1 should be equal to Q2, सही है, ये भी करेक्ट है, this is also correct, 20 माइक्रोकूलम करेक्ट, 80 करेक्ट, 1 4 करेक्ट, डिस्टेंस 1/x, 2/10 - x, 10 - x इक्वल टू 2x, तो 10 इक्वल टू 3x, तो बराबर है, तो x इक्वल टू 10/3, 10/3 3.33, सही है। ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, बिकॉज अदर थिंग्स कैन नॉट बी, तो इसको लिख दो 3.3 सेंटीमीटर 0.33 की जगह, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग यू कैन हैव, तो इतना ही डिफरेंस पड़ेगा, so you will have 1/x equal to 2/10 - x, so nothing is wrong as far as I can say, so nothing is going wrong here, तो आपका जो भी आंसर है it is correct, या तो फिर एक गलती हो सकती है, आपका आ रहा है 3.33 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3.3 into 10⁻⁻2 is 0.03, ये मीटर में आएगा, ऑप्शन बी शुड बी इन मीटर, so that is one thing you can do, तो ये एक चीज आप कर सकते हो, तो there is printing mistake basically, ये होता है, so doesn't matter, तो ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ सेंटीमीटर की जगह पे पुट अ मीटर, that's it, so this is 10/3 सेंटीमीटर, so this is nothing but 3.33, और यहाँ पे आप इसको कर लो मीटर, that's it, done, ऑप्शन नंबर बी। Next question, a water molecule has electric dipole moment 6.4 into 10⁻⁻30 centimeter when it is in vapor state. The distance in meter between the center of positive and negative charge of the molecules is, देखो ऐसा है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, उसका आपको डाइपोल मोमेंट बताया है, डाइपोल मोमेंट अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, इफ यू रिमेंबर, प्रोडक्ट ऑफ, टेल मी, यस, बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग देयर, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू, इट वाज डिनोटेड बाय P, चार्ज इनटू 2L, मतलब कूलम पर मीटर की कूलम मीटर, तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलम मीटर, राइट, तो आपको P की वैल्यू दी है, आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट, तो P दिया है, 2L फाइंड करना है, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा, यहाँ से सिंपल है, 2L इज इक्वल टू P/Q, राइट, व्हाट इज चार्ज ऑन वाटर मॉलिक्यूल, so water molecule has in total 10 protons and 10 electrons, so a water molecule
molecule has 10 protons and 10 electrons, therefore total positive charge is 10e, okay, and total negative charge is minus 10e. Total negative charge is minus 10e. But as you know कि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस लेते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. तो देयरफॉर 2L was distance between the centers of positive and negative charge is P. P value is 6.4 into 10 power minus 30 और upon 10 times of charge 10e. तो इसको सॉल्व करो तो you will get 6.4 into 10 power minus 30 upon 10 into 1.6 into 10 power minus 19. So 1 the and 4 the. So 4 into 10 power minus 12. आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए. डन. और डिस्टेंस किस में मेजर करोगे? मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two identical conducting spheres carry identical charges. If the spheres are set at a certain distance apart, they repel each other with a force F. A third conducting sphere identical to the other two but initially uncharged is then touched to one sphere and then into the other before removed. The force between the two spheres will be. We have solved such question. 3F by 8. 3F by 8 करके देखते हैं वापस. नो इश्यूज वी विल डू इट. आपके पास पहले यहाँ पे चार्जेस थे Q एंड Q, फिर आपने बाद में टच किया अनचार्ज को तो ये हो गया Q/2 और Q/2. फिर आपने दूसरे को टच किया तो टोटल चार्जेस Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2. फिर उसका हाफ 3Q/4. तो फाइनल सिचुएशन में आपके पास आएगा ये Q/2 और ये 3Q/4. So this is what you will have. Okay. So what will be? How do you find out forces? Distance is the same. तो दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या है? सेम है. तो डिस्टेंस सेम होगा तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 into Q2. तो F is proportional to Q square and F dash new force is proportional to Q/2 into 3Q/4. Q/2 into 3Q/4. तो 3Q square by 8. Q/2 3Q/4. 3Q square by 8. लेकिन Q square तो इनिशियल फोर्स था तो 3F by 8. फिर भी जिसको नहीं समझा है आई विल राइट इट डाउन. ये इनिशियल है. इनिशियल केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 मतलब Q square. फाइनल सिचुएशन में इन केस ऑफ फाइनल सिचुएशन मैंने बताया आपको कि हमने जब अनचार्ज पहले को टच किया तो हाफ चार्ज वो बाद में लेके जाएगा. Q/2 विल बी रिमेनिंग F dash. ओके F dash. नाउ फिर इसको टच किया तो टोटल Q प्लस Q/2 इज 3Q/2. फिर थर्ड कंडक्टर को रिमूव कर दिया तो ये आ जाएगा 3Q/4. तो न्यू फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. क्या प्रोडक्ट आएगा? ये 3Q square by 8. जब डिवाइड करोगे तो बाय द वे ये Q square इज F. तो देयरफॉर F dash इक्वल टू 3F by 8. तो हमने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रखा है. जस्ट रिवीजन. ओके वी हैव सॉल्व्ड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A given charge is situated at a certain distance from electric dipole in the end-on position. A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the end-on position. Experiences a force F. The distance of the charge is doubled. The force acting on the charge will be. End-on position मतलब क्या होता है?
What is end on position? एक डाइपोल है, you have a dipole, okay, and there is another charge, a given charge. मैं ऐसा करता हूँ, ये एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट? तो एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन मतलब इट इज either there on that side or this side, but on the axis, right? So there is a point here, this is center of dipole, this is point P, there is another charge over here, okay, which experiences the force of F. तो इनिशियल फोर्स कितना दिया है आपको, F1 कितना दिया है, F. मान लो इनिशियल डिस्टेंस आपके पास होगा x, तो इनिशियल डिस्टेंस इज x, फोर्स इज F, मतलब R1 इज x. अभी अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब R2 को अगर मैंने 2x कर दिया, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? हमने अभी तक एक्सियल लाइन पे एक चार्ज पे डाइपोल की वजह से कितना फोर्स होगा तो फाइंड ही नहीं किया. हमने क्या फाइंड किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस और ऑन द इक्वेटर, राइट? तो याद है क्या इक्वेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन 1/4π0 तो है ही, नीचे r क्यूब है ही, ऊपर p भी है, सिर्फ 2 है कि नहीं है ये पता होना चाहिए. एक्सिस पे 2 आता है कि नहीं ये पता होना चाहिए. आता है? श्योर? ओके, आई ट्रस्ट यू, यू हैव टू चेक. तो ठीक है, लेट मी चेक फॉर यू. तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि वो याद होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू विल नो व्हाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 कैंसिल होने वाला है. बट इन जनरल यू नीड टू नो, इन जनरल यू नीड टू नो दैट वो जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, इट वाज समवेयर ओवर हियर. तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका बनता है एक्सियल लाइन पे, इट कंटेन्स अ 2, राइट? तो ये एक्सियल लाइन का ही है. इक्वेटोरियल लाइन पे हमने बाद में निकाला था, एंड यू सी देयर इज नो 2 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऊपर 2 नहीं है, तो ये याद रखना. इन दिस केस ये जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें तो कोई इशू नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स गोइंग टू कैंसिल आउट. तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है. बाय द वे, आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, बट पूछा है फोर्स. बट डू यू रिमेम्बर फोर्स वाज गिवन बाय चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. So what do you understand from here? Electric field at axial line, electric field due to dipole at axial line is proportional to distance का cube, but force itself is q into E, which means force is proportional to E, and therefore force is proportional to E, but E is proportional to R cube. Therefore, you can say F2 by F1 equal to R. याद रखना, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या आएगा? R1 by R2 का क्यूब. तो F2 is equal to R1 by R2. What is R1? X, और R2 is 2x, क्योंकि डिस्टेंस ले गया था आपने डबल. तो x अपॉन 2x का क्यूब इंटू f, तो यह आ जाएगा f by 8. 2 का क्यूब कितना होता है? 8. तो f by 8 है क्या? ऑप्शन नंबर 2. तो एंड ऑन मतलब एक्सिस, एंड ऑन पोजीशन मतलब ऑन द एक्सिस. उसके बाद सिर्फ इतना ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis is proportional to 1 upon distance का cube, but force is proportional to electric field, so force is also proportional to 1 upon distance का cube. So F2 by F1 is R1 by R2 का cube. R1 था x और R2 था 2x, तो 1 by 2 का cube, तो F by 8. Next question. A positively charged oil drop of charge 8 into 10 power minus 5 coulomb remains stationary in an electric field between two horizontal plates separated by a distance of 2 centimeters having potential difference of 6 volt.
मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज गुड। तो ऐसा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है। हमने क्वेश्चन जो है वो थ्योरी क्लासेस में सॉल्व किया है ऑफ दिस टाइप, जिसमें आप एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इफ यू रिमेंबर आपने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया था, तो इलेक्ट्रॉन पे ग्रेविटी एक्ट होगा, सो इट विल गो डाउन, बट उस पे फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया था बैलेंस, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दैट। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज बैलेंसिंग ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, रिमेन्स स्टेशनरी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो मान लो ये एक प्लेट है और इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस, इवन दो पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड येट एट योर लेवल, बट ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्स्ट्रा, वो बता दूंगा मैं। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से L, 2 सेंटीमीटर। मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज, अब यहाँ पे जो एक ऑयल ड्रॉप है ये स्टेशनरी है, दिस इज स्टेशनरी, और आपको पता होना चाहिए द सेम सिचुएशन, इस पे एक वेट एक्ट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और विल बी देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लेट होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अप एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउन। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, वेट इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, और वेट इज नथिंग बट mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज यू नो इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, QE है ना, अभी भी यूज किया था हमने, डिड यू नॉट राइट इट हियर, यस, so that is the same thing. Okay, now you are supposed to find out mass. So mass is equal to Q by G into E. Now electric field कैसे find करते हैं, अगर आपको potential दिया होगा तो याद रखना electric field is nothing but potential per unit length, that's it. सिर्फ E की जगह पे V by N, इतना ही एक फॉर्मूला है जो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी तक, बाद में हो जाएगा, यू नीड टू नो दिस, राइट। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल बाय लेंथ। नाउ यूज दिस इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगा M का इक्वेशन, M इज Q by G V by L। डू यू नो व्हाट इज Q? यस, कितना, 8 into 10 power minus 5। G की वैल्यू कितनी होती है 9.8, this is accident due to gravity, that is capital G, 6.67 into 10 power minus 11, ये small g मतलब acceleration due to gravity, okay, 9.8 होता है, मैं roughly ले लूंगा 10 roughly। V कितना दिया है 6 वोल्ट बोला है ना, 6, और L 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना मत भूलना मीटर में, so this is 1 जा, this is 3 जा, 3 4 जा 20, 3 8 जा 24, और ये नीचे का 10 raised to 1, 10 raised to minus 2 मतलब 10 raised to minus 1, ऊपर जाके 10 raised to plus 1 मतलब 24 into 10 raised to minus 4, ऐसा कुछ आना चाहिए। 24 into 10 raised to minus 14 है, यहाँ पे हमारा आया 4। अच्छा, तो एक बार देखते हैं कैलकुलेशन, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम हियर, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो इन्होंने गड़बड़ किया है। एक, चार्ज सही है क्या? यस, चार्ज इज करेक्ट, V 6 था, करेक्ट, G की वैल्यू 10 है, करेक्ट, ये हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट, नो इश्यूज, सब ऐसा यूनिट में है, यस, तो नो इश्यूज। तो अगेन देयर इज अ प्रिंटिंग प्रॉब्लम ओवर हियर, तो इट इज जस्ट अ 4 हियर, ओनली अ 4, ओके, बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता। So there is a printing mistake. Cannot have this much. Okay, and
वैसे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सही है गलत कैसे. डू यू नो व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 power minus 31 kg. Okay, and electron पे चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज कितना है? 8 into 10 power minus 5. राइट, एक काम करेंगे, E by Q कर देंगे. E by Q या Q by E एक ही बात है. Q by E अगर कर दिया मैंने तो मुझे मिल जाएगा 8 और ये है 1.6. ये है 10 पावर माइनस 5 और ये है आपका ऊपर जाके 10 पावर माइनस 19 का प्लस 19, 10 पावर प्लस 19. राइट, तो दिस इज, ये अगर पॉइंट भी हटा देता मैं, अगर मैं 1.6 का पॉइंट हटा देता 16, 10 पावर माइनस 1 ऊपर जाके और एक प्लस, मतलब ये आ जाएगा 10 पावर 20. तो 10 पावर 20, तो ये आ गया आपका 10 पावर 15. ये आ गया आपका हाफ, 1 एंड 2 जा, हाफ इज 0.5, मतलब 5 into 10 पावर 14. करेक्ट, 5 into 10 पावर 14. What do you understand by this number? ये समझेगा तो मैं आगे क्या कर रहा हूँ वो समझेगा, नहीं तो किसी का. What do you understand by this number? टोटल चार्ज कितना है? 10 पावर माइनस 5. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 10 पावर माइनस 19. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए टू हैव टोटल चार्ज ऑफ, करेक्ट? पक्का? गुड. तो व्हाट विल बी द टोटल मास? This number multiplied by mass of one electron. What is mass of one electron? 9 into 5, 45. Okay, और 10 पर minus 14 and 10 पर plus 14 and 10 पर minus 31 कितना होता है? 14 और 31 minus 17 और ये था 45, तो 4.5 into 10 पावर माइनस 16 kg. अगर प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई, वो कंडीशंस क्या थे कि जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन से आ रहा है. तो इन्होंने क्या बोला है? ऑयल ड्रॉप, मतलब इट इज लाइक अ बॉल. उस बॉल पे आपने डाल दिया चार्ज. तो ऑयल ड्रॉप का मास और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है क्या? अगर इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता, मैं अगर बोलता अ टोटल चार्ज ऑफ 8 into 10 power minus 5 coulomb coming from some number of electrons, अगर ऐसा बोलते तो उस केस में आपको आंसर वेरीफाई करने का एक चांस था. क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज पता है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पता है, तो टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल गिव यू टोटल मास. राइट, तो उस केस में 4 into 10 पावर माइनस 16 17 किलोग्राम आएगा. उस केस में आएगा, इस केस में नहीं आएगा. तो इस केस में क्या है? यहाँ पे ऑयल ड्रॉप. कहीं पे भी बोला है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमने ऑयल ड्रॉप को बनाया? नहीं. तो ऑयल ड्रॉप का मास कैन बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस हैज टू बी करेक्टेड एंड पुट अ -4 हियर. तो ये सिर्फ एक टेक्निक याद रखना. दिस टेक्निक कैन हेल्प यू आउट समवेयर. So even either options can be wrongly printed or as I told you, अगर options correct है तो यहाँ पे चार्ज में 10 पावर माइनस 15 करना पड़ेगा. जो चार्ज है यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 15 आना चाहिए. अगर ये 10 रेज़ टू माइनस 15 आता है तो ये 10 पावर माइनस 15 होगा. तो यहाँ पे 10 पावर माइनस
14 होगा, तो इस केस में भी ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो वन ऑफ दीज टू थिंग्स नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, दोनों में से कोई भी एक, राइट। अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो यू गेट अ बोनस इफ यू अटेम्प्ट। अगर आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन गलत था तो मार्क्स मिलते हैं, छोड़ दिया तो नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Force between two identical spheres charged with same charge is F. मतलब F is proportional to Q square. Q1 Q2 by R square. Q1 and Q2 are equal, तो force is proportional to Q square. If 50% charge of one sphere is transferred to the second sphere. अच्छा क्वेश्चन है, इजी है और अच्छा है। ओके, डिस्टेंस तो चेंज कर नहीं रहे हो, तो ऐसा है कि पहले केस में इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था Q, तो फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो सेम हो, राइट। दूसरे केस में 50% ऑफ चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब इसका Q/2 इसको दे दिया तो 3Q/2, राइट। ऐसे ही किया ना, इसका हाफ उठा के सेकंड को दे दिया, मतलब Q/2 उठाया और Q में ऐड कर दिया, तो Q plus Q/2 इज 3Q/2। तो न्यू फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 3Q²/4, है ना, से प्रोडक्ट होगा। देयरफॉर F'/F इज इक्वल टू 3/4। इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, Q² कैंसल, तो F' इज 3F/4। 3F/4 हो गया, खत्म। So this is how you are supposed to solve. This is 3F/4 done। है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, 3F/4 done। So case 1 and case 2। Next question। very good, easy। Two charges of same magnitude, but ना, but opposite in sign, मतलब एक +2 एक -2 दिया है, are placed at point A and B, वो भी बताया है, on the x-axis as shown in figure। The direction of electric field at point C, D and E will be, okay, तो direction of electric fields, okay, of point C, D and E। अब एक बात समझ लो, नेगेटिव चार्ज का मैं ऐसा करता हूं, ड्रॉ ही कर लेता हूं। ये है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे है एक चार्ज, यहाँ पे है एक दूसरा चार्ज, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है C, यहाँ पे पॉइंट है D और यहाँ पे पॉइंट है E। ये चार्ज है A पे -Q और B पे +Q। नेगेटिव के केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स, है ना। तो जो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई एम शोइंग विथ ब्लू एरोस, तो टूवर्ड्स, यहाँ पे भी टूवर्ड्स और यहाँ पे भी टूवर्ड्स। फिलहाल सेकंड चार्ज को भूल जाओ, सिर्फ हम पहले चार्ज की बात कर रहे हैं। टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स। +Q का होता है अवे एंड अवे। तो जब +Q की बात करूं तो पहले को छोड़ दो, अवे एंड अवे एंड अवे, ओके, राइट। तो डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अब बोलो कि कैंसलेशन हो गया, बोल सकते हो, लेकिन कब बोल सकते हो? कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q आर द सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसलेशन होता है। लेकिन ऐसा है क्या C पॉइंट इज नियर टू A, वेरी गुड। तो जब नियर टू A है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कम तो फील्ड ज्यादा, मतलब ये होगा बड़ा वेक्टर, करेक्ट। -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? C पॉइंट पे ज्यादा होगा कंपेयर टू +Q, क्योंकि C पॉइंट ये -Q से पास में है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और C पॉइंट +Q से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड कम।
बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर अगर माइनस करते हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली मतलब रिजल्टेंट आपका कहा जाएगा, रिजल्टेंट इज गोइंग हियर। बराबर, क्लियर? डी पॉइंट ये दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे है, राइट? और डी पॉइंट पे देखोगे तो नेगेटिव का टूवर्ड्स और पॉजिटिव का अवे, मतलब बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एडिशन, सो इट विल बी लाइक दिस, करेक्ट? अगर आप यहां देखोगे ई पॉइंट जो है ये पॉजिटिव चार्ज से पास में है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बड़ा वेक्टर और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा वेक्टर। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी वेयर? इन दिस डायरेक्शन। बराबर? तो look at option 4, right? Then बीच का पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स एंड अगेन डन। क्लियर? ओरल क्वेश्चन था पर यू हैव टू थिंक। अब बोलोगे नहीं अरे कैंसल कब होगा? जब सेम डिस्टेंस पे है। सी पॉइंट माइनस से नजदीक है तो सी पॉइंट पे माइनस का फील्ड ज्यादा होगा और प्लस का फील्ड कम होगा। अपोजिट डायरेक्शन तो है लेकिन फील्ड का डिफरेंस है, तो फील्ड का अगर डिफरेंस है तो ज्यादा फील्ड जिसका होगा रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा, राइट? और डी मिड पॉइंट है और इंटरेस्टिंगली नेगेटिव के लिए भी टुवर्ड्स ए और पॉजिटिव का तो अवे ही होता है, तो इट इज आल्सो टुवर्ड्स ए। तो एडिशन दे विल गिव यू नेगेटिव डायरेक्शन एंड ई पॉइंट के लिए नेगेटिव का माइनस एक्स की तरफ है, पॉजिटिव का प्लस एक्स की तरफ है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पास में है तो फील्ड उसका होगा ज्यादा, तो दोनों का रिजल्टेंट विल गिव यू इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो फाइनली यू हैड दिस, ऐसा फिर ये फिर वापस से ऐसा, ऑप्शन नंबर 4। सो दैट इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।